please turn off your mic. So, good evening, everyone. Thanks to all of you for being here this morning. Today, today we are pleased to welcome our speaker, presenter, and mentor, Dr. Vidyasagar Panchal, a very special guest from Karnataka. Dr. Vidyasagar Panchal is MD in Kaya Chikitsa. He is an assistant professor in Department of Kaya Chikitsa of Raja Rajeshwari AMC and Hospital, Ahmedabad, Bidar, Karnataka. He is also founder of Santana Ayurveda. He is an academic director, Prasuta Academy for Specialty Studies in Bangalore, and today he will be sharing with us his expert opinion on management of common musculoskeletal disorder. With that, I want all of you to give your full attention to Dr. Vidyasagar Pansal and help me in welcoming him. Dr. Vidyasagar, Uh, hello, good, sir. good afternoon, everyone. Am I audible? Ji, sir. Yes, sir. Okay. Uh, this gives me an immense pleasure to be in front of you. Can you, everyone, please turn off your mics? Uh, so, this is my great pleasure to be with you with the Pro Ayurveda, the platform created by the young students of Ayurveda to spread the knowledge of Ayurveda all over. So today I'll be speaking about the common musculoskeletal disorders and management of them in Ayurvedic OPD. Before that, I wish to bow my head in the lotus feet of my Sadguru and my gurus of Ayurveda, Vaidya Ananta Dharmadikari sir, Vaidya Prashant sir, and Vaidya Abhijit Saraf sir, and all the previous Vaidyas. So let's start with the prayer. रागादिरोगान् सततानुशक्तान् अशेषकाय प्रसृतान् शेषान् औत्सुक्यमोहरतिदान् जगानयो पूर्ववैद्याय नमोऽस्तु तस्मै अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. So coming to the topic as such, the musculoskeletal disorders. The word itself has two different words, muscle and skeleton, the muscular and the skeletal disorders, and their management through Ayurveda. In fact, you can say the musculoskeletal disorders are the bread and butter of Ayurvedic practitioner. So today I'll be speaking completely based on the practical approach, and that totally I'll be speaking about the practicality and rather than theoretical aspects, and how to treat a patient, and what are the commonly encountered disorders of musculoskeletal disorders coming to a Ayurvedic physician in his OPD as such. We will discuss about the different types of musculoskeletal disorders, their management, and I'll share my some of my clinical experiences in dealing with such cases, some acute cases and some chronic cases. Later on, I'll also discuss about the medications and some of the Kashaya yogas, which are very new to the North Indian students. Kashaya yogas, Rasa yogas, Gugula yogas, Taila yogas, and how to practically apply them, and how to do dosha vibhaga, and how to practically imply these medications in a particular condition or the particular patient. So let us, as I previously said, these are the bread and butter of Ayurveda practitioner. So most of the cases which come to us are usually chronic cases. So chronic cases of pain, the pain is the first symptom which drags a patient towards a doctor, right? So a doctor has to, the Ayurveda doctor has a very big burden or a very big responsibility in front of him to give justice to such patients. And most of the time, due to the various factors, the patients tend to turn towards Ayurveda after searching all the
treatment aspects from the allopathic physicians and also from the contemporary sciences, isn't it? So finally they come to Ayurveda. अब सब करके थक चुके हैं, देखो आयुर्वेद भी एक बार देख लिया जाए। ऐसे पेशेंट ही हमारे पास ज्यादातर आते हैं। तो अगर हम बिफोर ज्वाइनिंग दिस सेशन किसी के पास भी अगर चरक संहिता पास में अवेलेबल हो तो प्लीज अपने पास अपने सामने रखिए, सो दैट व्हाट आर ऑल द मैं जो भी सूत्र बताता हूँ अगर आपके सामने होगा तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि हम धर्माधिकारी सर के शिष्यों की श्रृंखला ऐसी है जो चरक सामने ना हो तो पढ़ा जो भी पढ़ा रहे वो मन नहीं आएगा। तो अभी हम जाएंगे चरक सूत्रस्थान 10 चैप्टर पे। वहां पे एक ऐसा श्लोक है जो मध्यम रोग मार्गों की साध्यता के बारे में बता रहा है। शेषत्वाद आयुषो याप्यम असाध्यम पत्य सेवया लब्धाल्प सुखम अल्पेन हेतुना आशु प्रवर्तकम गंभीरम बहुधातुस्तम मर्म संधि समाश्रितम नित्यानुशायनम योगम रोगम दीर्घकालम अवस्थितम। सो ये जो मध्यम रोग मार्ग के है व्याधि है वो ज्यादातर याप्य और असाध्य होते हैं। तो याप्य और असाध्य होने की एक वजह हो सकता है वो लोग आयुर्वेद के पास ट्रीटमेंट के लिए इच्छुक होकर आते हैं, तो वो भी एक कारण हो सकता है। तो मध्यम रोग मार्ग क्या है? हमें तो रोग मार्ग 3 बताया है चरक ने, बाह्य रोग मार्ग, मध्यम रोग मार्ग एंड अभ्यंतर रोग मार्ग। तो उसका रेफरेंस है चरक सूत्रस्थान 11 चैप्टर त्रिश्रेणीय अध्याय में। तो गो टू त्रिश्रेणीय अध्याय चरक सूत्रस्थान 11 चैप्टर। ही सेज श्लोका नंबर 41 त्रयो रोग मार्ग इति शाखा मर्मास्ति संध्यः कोष्ठस्य। तो शाखा क्या है? रक्तादय धातु त्वक्च, लेकिन मर्माणि पुनर्बस्ति हृदय मूर्धनि अस्ति संधयो अस्ति संयोगात तत्र उपनिबद्धाश्च स्नायु कंडराः। सो ये अस्थि संधि और स्नायु और कंडरा के जितने भी रोग है ये मध्यम रोग मार्ग में आते हैं। सो मध्यम रोग मार्ग कंप्राइजेस ऑफ अस्थि संधि स्नायु कंडरा ऑल दिस एंड मर्म प्रदेशस एक्चुअली। तो ये मर्मास्थि संधि वाला जो रोग मार्ग है इसको मध्यम रोग मार्ग कहेंगे। तो मध्यम रोग मार्ग के जितने भी व्याधि है तो पहले ही मैं बता चुका हूं कि ये व्याधियां ज्यादातर याप्य होते हैं और अनुपक्रम होते हैं, बहुत ही डिफिकल्ट टू ट्रीट होते हैं और बहुत ही क्रॉनिक केसेस एंड टेक वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम टू ट्रीट देम। So coast अभ्यंतर रोग मार्ग is, as you know, this is कोष्ठ पुनरुच्यते शरीर मध्यम महानिम्नम वो बता चुका। So this is the मर्म अस्थि संधि स्नायु कंडरा। So इतने ये सभी अवयवों के व्याधि जिस रोग मार्ग में उत्पत्ति होते हैं उनको मध्यम रोग मार्ग कहते हैं। So मध्यम रोग मार्ग में कौन से व्याधियां होते हैं? तो अगेन इन चरक सूत्रस्थान 49 चैप्टर ही सेज पक्षवद हनुग्रह अपतानक अर्दित शोष राजयक्ष्मा अस्ति संधिशूल गुदभ्रंश शिरो हृदय बस्ति रोगादयश्च मध्यम रोग मार्गानुसारिणो भवन्ति। सो मध्यम मार्ग के जो व्याधि है उनके लिस्ट बता चुके हैं। सिर्फ इतने ही नहीं होते हैं, और भी जो भी नामी अनामी जितने भी व्याधियां होते हैं जो मध्यम रोग मार्ग मतलब स्नायु कंडरा अस्थि संधियों में होते हैं उन सभी का हम विंगड़ना ईस्वी में मध्यम रोग मार्ग में ही करते हैं। ठीक है, जो भी रोग मार्ग हो, लेकिन व्याधि दोषों के बिना तो नहीं होता। तो दोष और धातु ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं किसी भी व्याधि के डायग्नोसिस में। तो हेतु क्या है? सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग टू बी रिमेम्बर्ड बाय अ डॉक्टर इज हेतु। कोई भी व्याधि हो हेतुओं के बिना नहीं हो सकता। कार्य और कारण सिद्धांत। तो कार्य होने के लिए कारण चाहिए, तो कारण के बिना कोई कार्य नहीं होता। यत्र यत्र वह्नि यत्र यत्र धूम तत्र तत्र वह्नि। तो ये सिद्धांत भी अप्लाई हो सकता है। लेकिन जो भी व्याधि है उसके लिए कुछ कारण होते हैं, वो कारणों को ही हम हेतु बोलते हैं। तो ये हेतुओं के बारे में अगर हमें देखना चाहिए तो चरक चिकित्सा स्थान 28 चैप्टर में वातव्याधि निदान अध्याय में, वातव्याधि चिकित्सा अध्याय में इसके बहुत सारे हेतुओं के बारे में बता चुका। तो ये हेतु क्या क्या है? रूक्ष शीत अल्प लघ्वान्न व्यायाम अति प्रजागरैः विषमादुपचारच्च दोषास्त्र श्रवणादति लंघन प्लवन अत्यध्व व्यायाम
बहुत सारे ऐसे वात के प्रकोपक हेतु बता चुके हैं। ये वात प्रकोप के हेतु माने जाते हैं। ये वात प्रकोप के हेतु है, तो इसका मतलब क्या है, ये जो भी हेतुओं का सेवन करने से शरीर में ये वात के गुण बढ़ रहे हैं, तो ये गुण सिद्धांत है प्योरली। सो व्हाट इज दिस गुण सिद्धांत? सो दीज आर द गुणास आर गेटिंग इंक्रीज डे बाय डे इन द स्रोतस। स्रोतस में रूक्षादि गुणों की वृद्धि ज्यादातर होने लगा है। रूक्ष गुण की वृद्धि, लघु गुण की वृद्धि, कठिन, तो इतने सारे जो भी सूक्ष्म गुण की वृद्धि, तो वात के जितने भी गुण हैं उनके गुणों की वृद्धि अगर शरीर में होने लगता है तो उसको हम वात प्रकोप कहेंगे। तो वात प्रकोप के बारे में बहुत सारे लेक्चर्स अवेलेबल है यूट्यूब पे भी, धर्माधिकारी सर के भी है, अभिजीत सर सर के भी है, सब आप बाद में देख सकते हैं। तो रूक्ष शीतल लघ्वान्ना कायामा, ये सभी हेतुओं की वजह से वात के प्रकोप शरीर में होने लगता है। तो इनकी वजह से सभी शरीर में जब वात प्रकोप होगा तो ये हेतु बन जाते हैं। तो हेतुत्व क्या है, हेतु किसको कहते हैं? हाँ, तो अगर मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स होना है तो उसके हेतु कब कहेंगे इसको? कॉमनली कोई भी डिसऑर्डर्स हो, नॉट ओनली मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स, कोई भी डिसऑर्डर हो, या चाहे वो रक्तवह स्रोतस की दृष्टि हो, रसवह स्रोतस की दृष्टि हो, मांसवह स्रोतस की दृष्टि हो, कोई भी स्रोतस हो, अगर उसकी दृष्टि हो रहा है तो उसमें उस धातु का मतलब उस स्रोतस की दृष्टि होने के लिए उसके अलग सारे बहुत सारे निदान बता चुके हैं। तो हेतुत्व क्या है? जो भी हम विधि के विपरीत जो भी हम आहार विहार करते हैं, जो बहुत सारे विधि हमारे शास्त्र में बताया गया है, आहार की विधि बताया है, आहार खाने का विधि बताया है, आहार को पकाने की विधि भी बताया गया है, हाँ, विहार की विधि बताया है, दिनचर्या की विधि बताया है, ऋतुचर्या की विधि बताया है, हाँ, अष्ट आहार विशेषायतन बताया है, जो उष्ण होना चाहिए, लघु होना चाहिए, मधुर होना चाहिए, सारे रसों के साथ होना चाहिए। तो इतने सारे जो भी बता चुके हैं, उनके विपरीत अगर हम कुछ करते हैं तो वो विधि विपरीत हो जाएगा, तो उस कर्म को हम हेतुत्व प्राप्त हो जाएगा, तो उसको हम हेतु बोलेंगे। तो हेतु किसको बोलेंगे? जो भी हम विधि के विपरीत कर रहे हैं तो उसको हेतु बोलेंगे। तो मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स की भी हेतु में ये जो भी अभी तक हमने देखा, रूक्ष, अल्प, अति, अति रूक्ष आहार का सेवन, अति शीत आहार का सेवन, अल्प आहार का सेवन, और अति व्यायाम या अव्यायाम, अति लंघन, अति ब्रह्मण, तो उसे हेतुत्व प्राप्त होता है। ठीक है, तो उस उसे हम हेतु कहते हैं। सो विधि के विपरीत जो भी हम आहार विहार करते हैं तो उसे हम हेतु कहते हैं। तो इस मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स में भी ऐसे ही अभी पेशेंट है, तो वो 6 बजे ब्राह्मी मुहूर्त में उठना है, तो ब्राह्मी मुहूर्त में वो पेशेंट नहीं उठ पा रहा है, तो ही इज गेटिंग अप अराउंड 7:30 और 8 o'clock। सो ये विधि विपरीत हो गया। तो उठते के साथ ही वो बहुत सारा पानी पी रहा है, अत्यंबु पान कर रहा है, तो ये विधि विपरीत हो गया। तो ऐसे हम हेतुओं का एलिसिट करते जाना है, तभी हमें उस व्याधि के बारे में डिटेल हम हिस्ट्री पेशेंट से निकाल पाते हैं। तो हर एक व्याधि दोष के बिना नहीं हो सकता, दोष एव ही सर्वेशम रोगाणाम एक कारणम, हम बहुत बार देख चुके हैं। तो कौन सा भी डिसऑर्डर हो, या मस्कुलोस्केलेटल हो, या रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर्स हो, या रक्त वस्रोतस के डिसऑर्डर्स हो, जो भी हो, तो दोष हमें हर चीज में हमें दोष दिखना चाहिए। तो रूक्षादि गुण हर हर जगह हमें पता होना चाहिए, रूक्ष, लघु, शीत, खर, सूक्ष्म, चल, ये सभी गुणों के आधार पर ही हमें व्याधियों की चिकित्सा कर सकते हैं। तो अब अगर हम एक सेल भी समझ लो, एक सेल है, द सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो वो सेल में भी हम दोषों को देख सकते हैं। कैसे? एक सेल है तो उसमें वात क्या है? तो वात जो प्रणेता है, सभी कर्मों को मॉनिटर करने वाला, तो न्यूक्लियस इज द वात इन द सेल। ओके, तो जो शक्ति का हाउस को, जो द पावर हाउस ऑफ अ सेल, दैट इज द माइटोकॉन्ड्रिया, दैट इज पित्त इन अ सेल। ओके, देन द साइटोप्लाज्म, द अंबु जो कफ के रूप में है, वो साइटोप्लाज्म है, वो कफ होता है। तो इसी तरह एक सेल में भी हमें जो भी कर्म है वो भी वात पित्त कफ के हिसाब से ही होता रहता है। तो एक सेल है तो उसमें एक सेल के अंदर हमें न्यूट्रिशन जा रहा है, तो दैट न्यूट्रिशन विच इज एंटरिंग इनटू अ सेल is because of the prana and udana function of that particular cell.
Okay, the transformation of that particular food which is taken by the cell is again done by the samana vata. So अगर सेल में न्यूट्रिशन करेक्ट से पहुंच नहीं रहा है तो उसके लिए प्राण और उदान रिस्पॉन्सिबल है, और सेल में पाचन क्रिया अच्छे से नहीं हो रहा है और द सेल नरिशमेंट इज नॉट हैपनिंग, द समाना वाता इज इन्वॉल्व, एंड उस सेल से एक्सक्रीशन नहीं हो रहा है प्रॉपरली, तो देन अपान वाता इन द सेल इज विशिएटेड. सो हर एक सेल में भी हम वात पित्त और कफ के बारे में डिटेल्स में अगर देखते हैं तो भी वात पित्त कफ हमें मिलते हैं. तो बहुत सारे बार आप हमें ये प्रकृति में भी हम देखते हैं. तो ठीक है, उष्ण गुण जो भी है वो सभी हम रज रज से कंपेयर करते हैं, शीत गुण तो शुक्र से कंपेयर करते हैं. तो इस तरह से सभी जगत इस त्रिदोषमय है. तो इस तरह से अगर हम देखने जाएंगे तो कोई भी डिसऑर्डर का अंडरस्टैंडिंग इजी हो जाएगा. तो मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स में भी हम कुछ क्लासिफिकेशन ऐसे कर सकते हैं कि आर्टिकुलर और नॉन आर्टिकुलर. द डिसऑर्डर इज आर्टिकुलर डिसऑर्डर और नॉन आर्टिकुलर डिसऑर्डर. इंफ्लेमेटरी है या नॉन इंफ्लेमेटरी है, एक्यूट डिसऑर्डर है या क्रॉनिक डिसऑर्डर है, लोकलाइज्ड डिसऑर्डर है या वाइड स्प्रेड डिसऑर्डर है. तो इसको हम कैसे देखेंगे, आगे देखते हैं. जैसे आर्टिकुलर डिसऑर्डर है, द डिसऑर्डर और द डिसीज इन इनसाइड अ joint. So articular disorder, there are articular joints. If the disease in inside the joint, the symptoms are like pain and active or passive movements में pain होगा, effusion will be there, crepitations will be there, or instability will be there, and deformity will be there. So this is the condition with the cell. Okay, the articular disorders. So articular disorders mainly consisting of pain and active and passive movement में pain होगा, effusion will be there and crepitations will be there, and lacking and the instability will be there, and deformity will be seen in the articular disorders. When you come to if the articular involvement is not there, so then the patient will be like, the pain will be there on active movements only, on rest there will not be pain. So the point and the focal tenderness is in particular area, तो वो पर्टिकुलर एरिया में दिखाएगा, तो वो दैट इज द नॉन आर्टिकुलर कंडीशन. तो एक्स्ट्रा आर्टिकुलर ligaments, tendons, bruises and muscles, fascia, bone, nerve, so everything there will be a particular kind of pain. So in articular movements involvement, again there will be the synovium and the synovial fluid is involved, articular cartilages are involved, intra-articular ligaments are involved, so joint capsule will be involved, and like juxta-articular bones, everything will be involved, and the person will be having the above said, the previously said lakshana. So differentiating between the articular lesion and the extra articular or the non articular lesion is also very important in cases of these musculoskeletal disorders. So in Charaka also he says the asti vriddhi lakshanas, and in astivas rutudushti lakshanas he says adhyasti adidantaucha, danta asti bhedashulam vivarnata, kesha loma nakha smashru dosha asti pradoshajaha. These are the asti pradoshaja vikaras. There also he says adhyasti adidanta etc. So these are, you can compare with the osteophytes or the degenerative bone disorders or anything. So every time we have to do the chikitsa for dosha only, the hetu viparita chikitsa. So अगर वात प्रकोप हुआ है तो is it because of the शीत गुण of vata, is it because of the ruksha guna of vata, is it because of the lagu guna of vata, or is it because of the chala guna of vata? Okay, so for example, if the shita guna vriddhi of vata is taking place, or the chala guna kshaya of the vata is taking place, the patient suffers from the pakshagata. If there is chala guna vriddhi, the patient suffers from the Parkinson like disorders or the kampa like disorders. There is lagu or the chala guna kshaya, the ardhita like disorders. Okay, so like this we have to do the permutation and combination in each and every dosha. Okay, so just I'll give an example of sarvanga vata. A patient, a lady, a girl of around 22 years old has come to me last I think 15 or 20 days back. She has complaining of all over body stiffness. The stiffness पूरा सर्व शरीर में जकड़ाहट था, पूरा ऐसा stiffness था, and all the joints are unable to move.
कोई भी जॉइंट उसके मूव नहीं हो रहे थे। इवन 2 लोग चाहिए थे उसको चलते लेके आने के लिए। द हिस्ट्री व्हेन आई टेकन, तो सभी लोग उसके सर्व शरीर में बहुत सारे स्टेरॉइड्स दे दिए, बहुत सारे पेन किलर्स दे दिए, बहुत सारे मसल रिलैक्सेंट्स दे दिए, लेकिन कुछ काम नहीं बना। सो द पेशेंट, द लेडी, जो 22 साल की लड़की थी, उसका डिलीवरी होके 1.5 महीना हो गया था। तो डिलीवरी के बाद उसको सिजेरियन सेक्शन से डिलीवरी हुआ था। तो डिलीवरी होने के बाद उसको घर में जो भी उष्ण उपचार करना चाहिए था या सूती का परिचर्या करना चाहिए था, तो ये एलोपैथिक के डॉक्टर के कहने की वजह से दे डिड नॉट डू इट। उन्होंने कहा कि स्टिचेस वगैरह लगाए हमने, तो हम आप लोग ये सिकाई वगैरह मत कीजिए। तो ठीक है, वो लोग ना गर्म पानी ही पिलाए उसको, और सूती का परिचर्या वाज कंप्लीटली नॉट फॉलोड। So after a period of around only in 8 to 10 days, she started developing the stiffness and pain all over the body. So and gradually all over the body is involved, and the whole body was like stiff, and she was unable to lift her baby also. तो उसको, उसके बेबी को दूध भी पिला नहीं सकती थी वो, तो कोई और उसकी बच्ची को पकड़ के दूध पिला सकते। तो इस तरह के कंडीशन में पेशेंट आया था। तो मैंने जब हिस्ट्री लिया तो ये सभी हिस्ट्री उसको मिला। तो इसके बाद हमने क्या डिसाइड किया, दिस इज द शीत गुण वृद्धि ऑफ वात। तो वात के शीत गुण, वात के रुक्ष गुणों के वजह से तो ये वात प्रकोप हुआ है। सो अगेन वी हैव स्टार्टेड विद द स्वेदना सर्व शरीर। उसको हमने बोला कि घर पे आप आग ऐसे चारकोल्स रखो, उसको आपके उसके बेड के नीचे रखना है, तो उसको गर्म पानी पिलाना है, तो उसको सेकना है, तो सर्व शरीर का स्वेदन करना है, तो गर्म पानी पिलाना है। उसके साथ साथ मैंने कुछ वातहर द्रव्य दे दिए, और उष्ण वीर्य और वात कफहर जो थे द्रव्य वो दे दिया, जैसे कि षडधरण है, दीपन पाचन योग है, अग्नितुंडी वटी है, और जीरकाद्यारिष्ट और दशमूलारिष्ट जैसे, क्योंकि वो जस्ट आफ्टर डिलीवरी आई थी, तो 1.5 मंथ हुआ था डिलीवरी होके, तो उसको वातहरा, अनुलोमना और ये समानवात की भी चिकित्सा करना था। तो अग्नि कंप्लीटली मंद था उसका, और निदान बहुत सारे थे, तो निदान सभी निदान परिवर्जन करने के बाद हमने ये चिकित्सा शुरू किया। तो सिर्फ 10 days में द पेशेंट स्टार्टेड रेस्पॉन्डिंग, एंड आफ्टर जस्ट इन एक 10 दिन के अंदर पेशेंट 10 दिन के अंदर आया हमारे पास, और जब हमने एग्जामिन किया तो शी वाज लाइक 60 to 70% शी वाज ऑल राइट। तो अपने आप चल के आ रही थी, शी वाज एबल टू बेंड कंप्लीटली, तो बेंड हो सकती थी। ओके, सो आफ्टरवर्ड्स व्हेन निराम अवस्था इज फाउंड, सो शुद्ध वात के प्रकोप के लक्षण अब थे, तो हमने सर्व शरीर के अभ्यंग के लिए और सर्व शरीर के स्वेदन के लिए पोस्ट किया और मात्रा बस्ती का शुरू किया। तो व्हेन वी स्टार्टेड विद मात्रा बस्ती एंड सर्व शरीर Abhyanga and Svedana, she responded like wonderfully. She responded, and as if some magic has happened, she was like totally all right within 4 days of Abhyanga Svedana. So उसके बाद वो अपने बच्ची को खुद से उठा के जब हमारे पास लेके आई थी, और मेरे सामने बैठ के वो रोने लगी कि डॉक्टर साहब, मैं अपनी बच्ची को, खुद के डिलीवरी होने के बाद मैं अपनी बच्ची को छू भी नहीं सकती थी, मैं उठा भी नहीं सकती थी। सो जस्ट आफ्टर अभी 1.5 महीने के बाद मैं अपनी बच्ची को खुद से उठा के मैंने दूध पिलाया। तो एक आयुर्वेद वैद्य के लिए इससे अच्छा कॉम्प्लीमेंट क्या मिल सकता है, जो इतने सारे बड़े बड़े डॉक्टर्स, इतने बड़े बड़े गायनेकोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेटिक सभी लोग उसको मना कर चुके थे, और बड़े बड़े 1000-1500 के इंजेक्शन, स्टीरॉइड्स वगैरह लग रहे थे, और सिर्फ 20 दिन के ट्रीटमेंट में आयुर्वेद से इतने सारे चेंजेस हो सकते हैं। सो दिस वाज अ केस ऑफ लाइक, आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन मैंने उसका डायग्नोसिस के लिए नहीं गया, तो मैंने सिर्फ उसके हेतु के विपरीत चिकित्सा किया, तो हमें रिजल्ट आपके सामने थे। तो जो भी हेतु होता है वो आहारश्च विहारश्च यह स्यात् दोष गुणैः समः धातुभिर्विगुणश्चापि स्रोतसां स प्रदूषक। जो स्रोतो दुष्टि के निदान होते हैं, और वो आहार और विहार जो भी जो स्रोतस के विपरीत होते हैं, वो धातुओं के प्रदूषक होता है। तो एक संप्राप्ति मिल आता है चरक के चिकित्सा स्थान वातव्याधि अध्याय में, देहे स्रोतांसि रिक्तानि पूरयित्वा अनिलोबली करोति विविधान व्याधीन सर्वांग संशितम। जिस जगह पर शरीर में स्रोतस की रिक्तता होती है, तो रिक्तता का मतलब क्या है, वहां पर नीचे चक्रपाणी जी टीका करते हैं, रिक्तानि इति
तुच्छानी, स्नेहादि गुण शून्यानी। तो स्नेहादि गुण जहां पर शून्य होते हैं, उसका मतलब क्या हुआ विपरीत तंत्रयुक्ति से, रूक्षादि गुणों की वृद्धि हो रहा है। तो स्नेहादि गुण शून्य हो रहा है और रूक्षादि गुण बढ़ रहे हैं, तो उस स्रोतस में रूक्षता, खरता, लघुता बढ़ के वो स्रोतस श्रिंक होते जाएगा। तो वो स्रोतस जब श्रिंक होगा तो उसमें बहने वाले जो धातु रहते हैं, स्रोतस के जो भी धातु बहने बहने बहते रहते हैं, वो विमार्ग गमन हो जाएंगे, तो वहां पर दोष का प्रकोप हो जाएगा, तो व्याधि का उत्पत्ति वहां से शुरू हो जाएगा। तो इस तरह के संप्राप्ति जब हमें समझ में आता है, तो उस क्षेत्र में हम रूक्षादि गुणों के बदले में स्नेहादि गुणों का उपयोग करने लगते हैं, तो उस व्याधि का चिकित्सा हो सकता है। अभी हम आगे एक पर्टिकुलर डिसऑर्डर्स के बारे में बात करते जाएंगे। जैसे फर्स्ट आई विल स्पीक अबाउट द बैक एक और द कटिशूल। इसके लिए इसके बहुत सारे पेशेंट हमें मिलते हैं। ठीक है, आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम। हाँ, कटिशूल के बारे में अभी बात करेंगे, एक एक करके व्याधियों के बारे में बात करते जाएंगे। तो सबसे पहले कटिशूल के जो मेन हेतु होता है वो वातकर आहार विहार होते हैं और आजकल के लाइफस्टाइल होता है। तो लाइफस्टाइल कंप्लीटली लाइक सेडेंटरी लाइफस्टाइल, सिटिंग इन वन प्लेस, ऑफिस में चेयर पे बैठे रहना, अव्यायाम और ओबेसिटी और दीज फास्ट फूड हैबिट्स एंड एवरीथिंग। सो दीज आर द मेन हेतुस फॉर द कटिशूल आजकल के। तो इसमें ये हेतुओं का चिकित्सा पहले करना है। तो अगर आप पेशेंट का लाइफस्टाइल अगर आप चेंज कर सकते हैं, इफ ही और शी कैन वॉक अराउंड 10 to 15 मिनट्स आफ्टर एवरी 1 आवर, अगर 1 घंटे के बाद अगर दो दो 5 मिनट अगर वो घूम ले, थोड़ा सा उधर ही वार्म अप एक्सरसाइजेस वगैरह कर ले, तो इतने थोड़े सुबह जल्दी उठ के थोड़ा सा सूर्य नमस्कार कर ले, 10 सूर्य नमस्कार या 5 सूर्य नमस्कार, तो इतना सब हमें को एडवाइस तो करना ही है। तो इसके साथ बहुत सारे पेशेंट जो होते हैं, दे विल नॉट लिसन टू यू, राइट। पेशेंट्स आपका मतलब सुनते नहीं है, तो उनके लिए चिकित्सा तो करना ही पड़ता है। जितना हो सके हमें उन्हें समझाना है। उसके बाद उनकी चिकित्सा में हमें सबसे पहले शुरू करना है अपानवात की चिकित्सा से। जो भी कटिशूल के पेशेंट होता है, ज्यादातर उनमें अपान वैगुण्य होता ही है। कॉन्स्टिपेशन विल बी देयर associated with backache, and sometimes it may not be there, but still most of the patient what I have seen are also having apana vaigunya. So vatahara चिकित्सा is like disturbing. Dr. Prafulla, I think, please turn off your mic. So vatahara, sneha, vedana and brahmana will be the treatment in katishula. सो सद्य विरेचन आप दे सकते हैं एरंड तैल से 15 to 20 ml और 30 ml कुछ एरंड तैल या गंधर्वस्तादि एरंड तैल प्रोसेस्ड तैल वगैरह देके आप सद्य विरेचन कर सकते हैं। उसके बाद आप चाहे तो मात्रा बस्ती या कटी बस्ती ऐसी चिकित्सा तो कर सकते हैं, लेकिन द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट शुड बी लाइक वातहर एंड ब्रह्मणा। इफ इट इज आम युक्त, अगर उनमें आम दोष है ज्यादा, तो आप रूक्षण चिकित्सा करना पड़ेगा, वहां पर वालुका स्वेद वगैरह करना पड़ेगा। उसके बाद आप नॉर्मल चिकित्सा पर आ सकते हैं। साम और निराम की जानना एक आयुर्वेद वैद्य के लिए अनिवार्य है। साम और निराम के बिना आप कोई भी चिकित्सा नहीं कर सकते हैं। हमें कैटलॉग फिजिशियन नहीं बनना है। ये कैटलॉग है, ये बैक एक है, इसके लिए योगराज गुगुड़ दो, आप इसके लिए त्रयोदशं गुगुड़ दो, नहीं, ऐसी चिकित्सा हमेशा नहीं करना चाहिए। जो भी हेतु है, जो भी संप्राप्ति है, उसकी तरफ से हमें चिकित्सा करना है। अगर आप कोई भी ऐसे नहीं है कि फीवर आया पैरासिटामोल दे दो, इचिंग हो रहा है सिट्रिजिन दे दो, इट्स नॉट लाइक दैट। आयुर्वेदा कोई कैटलॉग फिजिशियन नहीं बनना है हमें, ठीक है। तो आप अवस्था देखिए, अगर साम है या निराम है, बैकएक के पेशेंट है तो उसमें साम और निराम देखिए। अगर जकड़ाहट है, स्टिफनेस है, तो उसको कफ के एसोसिएटेड है, तो उसमें आप रूक्ष क्रिया पहले कीजिए, उसके बाद आप अभ्यंग के लिए जा सकते हैं। और अभ्यंगा, नाड़ी स्वेदा और कटिबस्ती और बहुत सारे चिकित्सा आप कर सकते हैं। तो और एक मैंने देखा है, जो पर्टिकुलरली एरिया में अगर बैकएक के कंडीशन है, तो वहां पर रक्त मोक्षण भी आप चलोका लगा के कर सकते हैं। या आप आजकल कपिंग मेथड आया है, तो कपिंग मेथड से आप थोड़ा सा 1-2 प्रच्छन्न कीजिए उस जगह पर और कप लगा दीजिए और जितना ब्लड आता है आने दीजिए। तो इस तरह से कपिंग मेथड से भी उस एरिया का बैकएक में बहुत सारा हेल्प हो जाता है पेशेंट को।
आप तैलों में बहुत सारे, लाइक मात्रा बस्ती के लिए आप धन्वंतरम और सहचरादि तैला वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो गुगुल तिक्तकम घृत वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो अभी मैं अपान वायुगुण्य के बारे में बता रहा था, तो अपान वायुगुण्य ज्यादातर होता ही है ऐसे कंडीशन में, क्योंकि आप निकाले चरक चिकित्सा स्थान 28 चैप्टर, वहां पर 28 श्लोका है। पक्वाशय स्थे, अगर वात पक्वाशय में कुपित हुआ है तो व्हाट आर द लक्षणास इट विल क्रिएट। पक्वाशय स्थे आंत्रकूजनम शूलम आटोपम करोति च कृच्छ्र मूत्र पुरीशत्वम आनाहम त्रिकवेदना। तो कृच्छ्र मूत्र पुरीशत्वम आनाहम त्रिकवेदना, त्रिकवेदना मतलब त्रिक क्या है, तो बहुत सारे जॉइंट जहां पर मिलते हैं, बहुत सारे बोन्स जहां पर मिलते हैं, तो बैक एक लो बैक जो कंडीशन लंबार एरिया, इट इज अ त्रिक। और हमारा जो सर्वाइकल एरिया वो भी त्रिक है, तो इस एरियाज में हमें ज्यादा पेन होने लगता है। तो पक्वाशयगत वात का त्रिक का मतलब वहां पर हमें लो बैक पेन समझना चाहिए। एक पेशेंट ऐसा ही इंजीनियर आया था, तो उसका बैक एक था, तो बैक एक बहुत बहुत सारे साल से था, तो उसको 5 साल से भी ज्यादा था। तो जब हमने हिस्ट्री लिया तो ही हैज वॉन्डर्ड ऑल द ऑर्थोपेडिशियंस, ठीक है, न्यूरोलॉजिस्ट के पास गया, ऑर्थोपेडिशियन के पास गया, सभी ने उसको एमआरआई निकाला, तो एमआरआई में भी सब नॉर्मल था, लेकिन बैक एक क्यों हो रहा है किसी को पता नहीं। तो अब बहुत सारा पेन किलर वगैरह खा के वो तंग आ चुका था। तो जब मैंने हिस्ट्री लिया, तो सुबह उठ के जब उसको हिस्ट्री वगैरह हमने जब लिया, तो बहुत सारा पानी पीता था सुबह उठ के, तो अग्नि उसकी मंद है और अत्यंबुपान कर रहा है, और उसके बाद वो ड्राई फ्रूट्स खा रहा है बहुत सारा, और दही खा रहा है और दूध पी रहा है, लेकिन अग्नि मंद ही है। तो इस तरह के हेतुओं के सेवन कर रहा है, और उसको कॉन्स्टिपेशन, बहुत सालों से कॉन्स्टिपेशन भी है, हायम चूर्ण खाता है और बहुत सारे पाचन गोली वगैरह लेता रहता है। तो जब तक उसके हम जीआई ट्रैक पर हम काम नहीं करेंगे, तब तक उसका बैकएक कम नहीं होगा। तो मैंने एक सद्य विरेचन दे दिया, सद्य विरेचन, और उसके 15 दिन बाद एक त्रिफला कषाय का बस्ती एरंड तैल युक्त एक शोधन बस्ती दे दिया। उसके बाद उसको शमन औषधि के लिए समान बात की चिकित्सा, अग्निदीपन की चिकित्सा, हिंगवाष्टक शंकरवटी चित्रकादिवटी जीरकाद्यारिष्ट, अभयारिष्ट, इस तरह का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हमने शुरू किया। तो ही रेस्पॉन्डेड वेरी वेल, और 15 दिन में उसके बैकअप नहीं था। उसके बाद हम ब्रह्मण के लिए उसको मसाज वगैरह थेरापीज करवाए और कटी बस्ती वगैरह कराया, तो वो बाद बाद का चिकित्सा था, लेकिन पहले जो था वो हेतु विपरीत चिकित्सा हमें करना था। तो हेतु विपरीत का मतलब समझ रहे हैं ना, तो हेतु जो मिलते हैं उनको बंद करना, जो विधि विपरीत चिकित्सा, विधि विपरीत जो आहार विहार करते थे उनको बंद करेंगे, और विधि के साथ जो विधि है, आचार्यों ने जो विधि बताया है उसके हिसाब से, उसके अग्नि के हिसाब से उसको खान पान का एडवाइस करना है। तो चरक सूत्रस्थान 10 चैप्टर में आप देखिए, वहां पर अच्छा भिषक जो महा चतुष्पाद अध्याय में बताया गया है, जो सबसे अच्छा वैद्य कौन है, भिषजा प्राक परीक्षैवं विकाराम स्वलक्षणम पश्चात कर्म समारंभ कार्य साध्येषु धीमता। पहले व्याधि को समझिए, पहले अवस्था को समझिए, प्राक परीक्षा एवं, भिषजा प्राक परीक्षा एवं विकाराणम स्वलक्षणम, विकार अपने लक्षण मतलब जो लक्षण से रोगी आया है उसको पहले आप परीक्षा कीजिए, उसके बाद आप कर्मों की समारंभ मतलब कर्म शुरू कीजिए, अपना चिकित्सा करना है। तो यहाँ पर विकार के लक्षणों को जानना मतलब वो विकार के लक्षण क्यों आ रहा है, तो उसके हेतु क्या है, उनको भी समझना अनिवार्य है। उसके बाद हमें साध्य है या असाध्य है या याप्य है, या किस हिसाब से, या औषध साध्य है, शस्त्र साध्य है, या अग्निकर्म साध्य है, उस हिसाब से हमें चिकित्सा का आगे जाना चाहिए। अब इसके बाद हम जाएंगे जो मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर है, गृध्रसी। व्हाट इज गृध्रसी? जो बहुत सारे लंबोसैक्रल डिस्क कंडीशंस, बहुत सारे, जैसे स्पॉन्डिलाइसिस है, स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस है, डिस्क प्रोलैप्स है, वो बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज है। विल नॉट गो इनटू दोज टर्मिनोलॉजीज इन डिटेल बिकॉज दे आर मियर कंफ्यूजिंग। उससे कोई फायदा तो है नहीं, फालतू में हम कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन गृध्रसी आयुर्वेद के हिसाब से अगर समझेंगे तो क्या है, स्पिक पूर्वा कटिपृष्ठ जानुजंगा उरु जानुजंगा पादम क्रमात्, कटी पृष्ठ उरु जानु जंगा पादम क्रमात्, इस एरिया में पेन होता है पेशेंट को, और स्ट्रेचिंग टाइप ऑफ पेन होता है।
तो ये एरिया कौन सा है, ये सयाटिक नर्व के पास ही है, कटी, पृष्ठ, जानु, जंघाउरु। तो ऐसे एरिया में उसको जब पेन होता है, तो वो पेन भी कैसे होता है, स्तंभ रुक्तोदयर गृह्णाति स्पंदते मुहु, स्पंद रुक तोद। तो इस तरीके से दर्द उसको होते रहते हैं। अष्टांग हृदयकार के बहुत अच्छे श्लोक है इस बारे में। अष्टांग हृदय के निदान स्थान के 15वें अध्याय में जो वात व्याधि के निदान के बारे में बताते हैं, तो वहां पर एक इंपॉर्टेंट लक्षण वाग्भट जी कहते हैं, वो है शक्ति उक्षेपणम निगृह्णाति गृध्रसीनताम प्रचक्षते। यहाँ पर एसएलआर की बात कर रहे हैं। तो स्ट्रेट लेग रेजिंग टेस्ट हम जो करते हैं ओपीडीज में, उसके बारे में आचार्य वाग्भट जी यहाँ पर कह रहे हैं। जो शक्ति उक्षेपम निगृह्णाति, मतलब शक्ति मतलब लोअर लिम्ब, तो हम अगर उसको उठाते हैं तो वो पेशेंट उठाने के लिए दर्द होता है वहां पर, निगृह्णाति ही सडनली कैचेस पेन देयर। सो दैट इज हाउ द गृध्रसी इज डायग्नोस्ड, राइट। तो इसके बारे में अष्टांग हृदयकार बता चुके हैं। तो ये गृध्रसी है, इसमें दो तरह के बताए गए हैं, एक वातज है, एक वातकफज है। तो वातज गृध्रसी में तंद्रा, अरोचक, गौरव ये लक्षण नहीं रहेंगे, गौरव नहीं रहेगा, सिर्फ शूटिंग पेन विल बी देयर। सो एक्यूट कंडीशंस रहते हैं, तो उनके बारे में, तो इंट्रावर्टिकुलर डिस्क जो रहते हैं, तो उसमें हमें कैसे आगे बढ़ना है, कैसे हाउ हाउ वी शुड स्टार्ट द ट्रीटमेंट एज सच। तो हेतु अगर आप देखेंगे तो इसमें वात और वात कफज दोनों हेतु मिलेंगे। तो उसके पक्वाशय के जो दुष्टिकर है, जो अग्नि दुष्टिकर निदान है, उनके बारे में हम पहले जानेंगे, उसके बाद इसकी चिकित्सा के लिए जाएंगे। तो चिकित्सा क्या बताया है चरक जी, अंतरा कंडरा गुल्फा सिरा बस्ते अग्निकर्मच, अंतरा कंडरा गुल्फा सिरा बस्ती अग्निकर्मच गृध्रशीचु प्रयुंजित। तो अंतरा और कंडरा, अंतरा कंडरा गुल्फम, तो गुल्फ संधि जो है, तो मतलब जो एंकल ज्वाइंट है उसके आसपास के जो वेन रहता है ना, तो उसकी हम सिरावेद करना है। तो दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आचार्य आर टेलिंग। तो लिटरली हम भी यही चिकित्सा इस्तेमाल करते हैं हमारे सेंटर में। तो जब भी पेशेंट आता है, जो अगर ये गृध्रसी का है, तो बहुत सारा पेन है, तो हम उसको सबसे पहले उसके निदानों के बारे में पूछेंगे, तो निदान परिवर्जन करेंगे। उसके बाद चिकित्सा के लिए पहले साम और निराम की डिवाइडेशन करेंगे। अगर साम दोष है और यहाँ पर कफ के आवरण बहुत लग रहा है, तो उसको हम रूक्षण के लिए भेजेंगे। रूक्षण क्या करेंगे, पहले उद्वर्तन करेंगे, कोलकुलत्तादि चूर्ण से उद्वर्तन शुरू होगा। अगर उद्वर्तन नहीं पॉसिबल है तो वी विल स्टार्ट विद द वालुका स्वेद, इष्टिका स्वेद, चूर्ण पिंड स्वेद, तो ऑल रूक्षण चिकित्सा, so that the ama will be removed. So when the ama is removed, so the patient will be like feeling lightness of the body, and then the pain only the shuddha vata prakopa will be there. Then we will start with the vatahara chikitsa like erandamuladi nirovasti or ksharavasti if some ama or kapha is still left. So all those chikitsas we will start. If it is like there is severe pain and the shooting type of pain, तो पेशेंट और ज्यादा कफ के लक्षण नहीं दिख रहे हैं, देन वी विल गो फॉर द अभ्यंग और द्रव स्निग्ध यवागु पान। तो द्रव स्निग्ध यवागु पान कैसे करेंगे, तो एक यवागु प्रिपरेशन इज एक्सप्लेन्ड इन चरक। प्रिपेयर यवागु, एड सम घी एंड एड सम शुगर एंड आस्क द पेशेंट टू ड्रिंक इट। तो वो जब पेशेंट यवागु पान करेगा, तो उसके 45 मिनट्स बाद हम वेट करेंगे, तब तक उस पेशेंट का स्वेदन, स्नेहन स्वेदन करेंगे, अभ्यंग और स्वेदन करेंगे। उसके बाद हम सिरावेद करेंगे, कहां पर, अंतरा कंडरा गुल्फा। तो एंकल जॉइंट के जस्ट ऊपर देयर विल बी अ वेन, तो उसको हम टॉर्निकेट बांध के उस वेन का सिरावेद 18 नंबर नीडल से करेंगे। तो रिमेंबर 18 नंबर नीडल देयर। तो छोटे छोटे माइन्यूट चीज हम बहुत मिस्टेक करते हैं आयुर्वेद के वैद्य, 18 नंबर नीडल से ही हम करेंगे, क्योंकि द बोर विल बी देयर, विल बी लाइक गुड एंड रक्त भी आराम से बहेगा। तो मैंने आंखों से देखा है, कम 98% ऑफ द पेशेंट्स, बहुत सारे कंपलसरी हर एक पेशेंट में जब भी हम रक्तमोक्षण करते हैं ना, तो पेशेंट विल स्टार्ट मूविंग विदाउट एनी पेन जस्ट आफ्टर। कोई डाइक्लोफेनाक, कोई ट्रेमाडोल इंजेक्शन से भी पेन नहीं कम होगा जितना सिरावेद के तुरंत बाद पेन कम होता है। तो सिरावेद करेंगे, उसके बाद पेशेंट को फिर से हम थोड़ा स्निग्ध द्रव्य या कुछ शक्कर का पानी पिला दीजिए, या सीतोपलादी चूर्ण पानी में घोल के पिला दीजिए, थोड़ा सा अग्निदीपन हो, और पेशेंट को हम शिफ्ट करेंगे। तो उसके बाद विल स्टार्ट विथ अगेन द बस्ती चिकित्सा, सिरा बस्ती अग्निकर्मच। सो बस्ती चिकित्सा विल बी गिवन। तो बस्ती में बहुत सारे बस्ती के टाइप्स है, जैसे एरंडमूलादि निरो बस्ती है, और क्षार बस्ती है, और तैल की बस्ती, बहुत सारे बस्ती। तो हम बस्तियों की सिलेक्शन के बाद हम कर सकते हैं।
तो रक्तमोक्षणा इज वेरी इंपॉर्टेंट, फॉलोड बाय द बस्ती इज इंपॉर्टेंट। बस्ती में भी कम से कम 15 बस्ती तो यहाँ पर चाहिए होता है। तो यू कैन गिव निरोह इन द मॉर्निंग एंड आफ्टरनून आप अनुवासन दे सकते हैं। तो इस तरह से हम टाइम ड्यूरेशन कम करके we can restrict the time into 8 days and we can do maximum number of bastis to the patient। तो इस तरह से हम बस्ती कर सकते हैं। तो बस्ती के बाद आप अभी बीच बीच में आप कटी बस्ती भी दे सकते हैं, ठीक है, पिडिचिल कर सकते हैं, तो सर्वांग तैलधारा कर सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे आप चिकित्सा मेथड्स इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे पेशेंट बहुत बहुत मतलब tremendous results you can get in the Gridrasi। So Khanja or Pangu, there are two terms. Again, the Pangu is the patient cannot like the both the legs are involved and he cannot walk properly। तो इस कंडीशन में भी ऐसे ही चिकित्सा का इस्तेमाल करना होता है। देन कमिंग टू द कषायस वगैरह, तो बहुत सारे कषाय है, रासना सप्तक कषाय है, सहचरादि कषाय है, रासना एरंडादि कषाय। विल डिस्कस अबाउट द कषायस लेटर, बट इन दिस कंडीशन जब की ये घृतरसी की बात आई है तो एक कषाय के बारे में मैं बोलना चाहता हूँ, वो है सहचरादि कषाय। तो सहचरादि कषाय का सहचरम सुरदारुम सनागरम क्वथितम अंबसी तैलमाश्रितम पवन पीड़ित देह गतिम पिबन, पवन पीड़ित देह गतिम पिबन द्रुत विलंबितो भवति इच्छया। मतलब जो पवन पीड़ित देह गति है, जो वात के प्रकोप के कारण जिसकी देह की गति, जिसकी चलन वलन अफेक्टेड हो गए हैं, उसको अगर भागने की इच्छा है तो इफ ही वांट्स टू वॉक फ्रीली देन ही हैज टू कंज्यूम सहचरादि कषाय, लाइक दैट इट इज एक्सप्लेन्ड इन द अष्टांग हृदय। तो सहचरादि कषाय में आप सहचरादि तेल के भी 10 ड्रॉप डाल के आप पेशेंट को दे सकते हैं। इससे भी गंध तेल के भी डाल के दे सकते हैं, या धनवंतरम तेल के डाल के दे सकते हैं। तो तैलास ऑफ मध्यम पाका और द मृदु पाका फॉर पाना बताया है, तो आप 10-10 बूंद डाल के भी पेशेंट को पिला सकते हैं। तो कमिंग टू सम घृतरसी के बारे में हो गया। So musculoskeletal disorders is a wide spectrum of disorders. We cannot cover all the disorders. Only some important conditions which do come in the patient in the Ayurveda practice. I am covering only those things. So अभी हम सर्वाइकल और रेडिकुलोपैथीज के बारे में बात करेंगे। तो सर्वाइकल डिसऑर्डर्स जो है, जैसे कि विश्वाची है और बहुत सारे, जैसे कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस है, सर्वाइकल डिस्क प्रोलैप्सिस है। तो अगर इसमें हम देखेंगे तो विश्वाची सिमिलर टू घृतरसी, only thing is घृतरसी happens in the lower extremities of the body, like in the lumbar discs and the sacral disc, but the विश्वाची occurs in the cervical disc। the same चिकित्सा भी almost same होता है, like similar to घृतरसी। वहां पर हम अंतरा कंडरा गुल्फ सिरावद करेंगे, यहाँ पर बाहु में करेंगे, दक्षिण बाहु या वाम बाहु में सिरावद करेंगे। उसके बाद हम सेम वहां पर आप बस्ती दे सकते थे, यहाँ पर हम नस्य करेंगे और कषायस का इस्तेमाल करेंगे, और नस्य एंड पत्रपिंड स्वेद कर सकते हैं, ग्रीवा बस्ती कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस विल बी प्रेजेंट। सो शमन के लिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंटली, अगर कफ का आवरण है और बहुत हैवीनेस वगैरह है सर्वाइकल एरिया में, तो आप रासना शुंठ्यादि कषाय का इस्तेमाल कर सकते हैं, अष्टवर्ग कषायम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नहीं है, सिर्फ दर्द ही ज्यादा है, वहां पर कोई स्टिफनेस वगैरह नहीं है, कफ का कोई लक्षण नहीं है, आवरण नहीं है, तो उस कंडीशन में आप सिर्फ प्रसारण्य आदि कषाय वगैरह ब्राह्मण योगों के लिए जा सकते हैं, या कार्पासस्त्यादि तैला इज द बेस्ट चॉइस, और कार्पासस्त्यादि कषाय भी आप दे सकते हैं, व्योषादि वटी दे सकते हैं, त्रयोदशांगु गुड़ दे सकते हैं। तो बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन आप कर सकते हैं, लेकिन आपको केस डायग्नोस करने आना चाहिए। तो ऐसे अगर आप हम चिकित्सा करेंगे केसेस को अंडरस्टैंड करके, तो न्यूरोलॉजिस्ट जो केसेस छोड़ देते हैं ना, वो भी पेशेंट अगर हमें मिलेंगे तो भी हमें खाने को टाइम नहीं मिलेगा, जैसे अवार्ड सर कहते हैं हर बार। तो ऐसे हमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन करके चिकित्सा करना चाहिए। तो अक्यूट कंडीशंस भी रहते हैं कुछ, जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में सर्वाइकल डिस्क प्रोलैप्स के केसेस आते हैं, या लंबा डिस्क प्रोलैप्स के एक्यूट केसेस आते हैं। तो उनमें सबसे ज्यादा हमें याद रखना है कि पेशेंट को एब्सोल्यूट बेड रेस्ट चाहिए, पेशेंट को कंप्लीट बेड रेस्ट देना है। तो रक्तमोक्षणा अवस्था वगैरह देख के हम कर सकते हैं। तो ग्रीवा बस्ती या कटी बस्ती और पत्रपिंड स्वेद और ये सब कर सकते हैं। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बोलना चाहता हूँ, मर्म गुटिका। तो मर्म चिकित्सा के वैद्य जो करते हैं, मर्म गुटिका एक टैबलेट मिलता है, तो आप मर्म गुटिका को लेकर उसको मुरिवेण्णा तेल में आप भर्जन करके उसको अप्लाई कर सकते हैं, या आप सिर्फ नींबू स्वरस में उसको घिस करके आप भी लगा सकते हैं। तो उस एरिया में दर्द बहुत ज्यादा
कम होने लगता है। तो these are the treatment aspects you can apply in your OPD level practice. तो इसके बाद हम बात करेंगे कुछ ऐसे कंडीशन की जो अवबाहुक कहते हैं। तो अवबाहुक इज लाइक बाहु कर्म क्षयकरी, तो बाहु जो हाथ की काम करने की क्षमता होता है वो इफेक्ट हो जाता है, तो उसको अवबाहुक कहेंगे। तो अष्टांग हृदय निदान स्थान 15 चैप्टर द श्लोका नंबर 43 he says अंश मूल स्थितो वायु शिरा संकोच तत्र गः। अंश संधि इज दिस बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ऑफ द शोल्डर जॉइंट। सो यहाँ पर अंश मूल में अगर वात प्रकोप हो गया तो वहां के सिराओं को संकोच करेगा, स्नायुओं को संकोच करेगा, तो बाहु प्रस्पंदित हरम, तो बाहु का काम करने की क्षमता कम हो जाएगा। तो दैट पर्टिकुलर हैंड इज अफेक्टेड सो दैट द पेशेंट कैनॉट डू हिज नॉर्मल रूटीन वर्क्स प्रॉपर्ली। तो इस कंडीशन को हम अवबाहुक कहेंगे। तो यहाँ पर भी अवबाहुक में जैसे चिकित्सा भी अष्टांग हृदयकार बताते हैं अवबाहुकम हितम नस्यम स्नेहश्च उत्तरबत्तिकः। तो यहाँ पर नस्य करना है तो अकॉर्डिंग टू अष्टांग हृदयकार, तो नस्य करने से पहले अगेन वी हैव टू गो फॉर द दोषास, या क्या ये सिर्फ केवल वातज है या वात कफज है। तो वात कफज है तो वहां पर आवरण की चिकित्सा पहले करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको कार्पस इत्यादि नहीं अष्टावर्ग या भद्रदारवादी कषाय, तो ऐसे कषायों के बाद करना पड़ेगा। और वात कफहर जो भी तीक्ष्ण द्रवते मृत्युंजय रस है, आप श्वास कुटार रस है या शिरशूलादि वज्र रस है, ऐसे जो रसौषधि भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं सो दैट द आवरण गेट्स क्लियर। एंड आफ्टर दैट यू कैन गो फॉर द ब्रह्मण योगास लाइक वात विध्वंसन रस और बृहत्वात चिंतामणि और कार्पस इत्यादि कषाय। और आप कार्पस से तेल का नस से बहुत अच्छा से रिजल्ट आता है अवबाहुक में, तो आप यू कैन ट्राई विद दोज थिंग्स। So the principle is very important here. The Vatahara and Brahmana karma should be done in Avavahuka. So इसके बाद हम मन्या स्तंभ के बारे में बात करेंगे। मन्या स्तंभ is one of the conditions where the neck is very stiff. The patient cannot move his necks. Okay, तो यहाँ पर कफ का आवरण का कंडीशन सामने दिखता रहता है। So the patient is like he cannot move his the neck right to left. सो ये कंडीशन में मैं बहुत सारे लोगों को देखा हूँ जो तेल डाल के रगड़ते रहते हैं, बहुत सारे तेल अभ्यंग वगैरह करते रहते हैं। दिस इज वेरी रॉन्ग स्टेप द पीपल डू हियर। मैंने एक केस देखा था जहाँ हमारे हॉस्पिटल में वर्क करने की एक लड़की थी, तो उसको मन्यास्तंभ हो गया। तो एक हमारे कॉलेज में एक न्यूरोलॉजिस्ट को बुलाते थे, तो न्यूरोलॉजिस्ट यूज्ड टू कम, सो शी थॉट द न्यूरोलॉजिस्ट कुड हेल्प हर। सो उसके बाद उसके पास गई तो 250 रुपए का फीस दिया उसको। तो उसके बाद उसने बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस लिखा, तो उसके बाद 7-2-3 हजार रुपए खर्च हुए। तो आफ्टर एवरीथिंग तो अराउंड 5 to 6,000 शी स्पेंट एंड शी डिड नॉट गेट एनी रिलीफ आफ्टर 10 days ऑफ ट्रीटमेंट। तो इसके बाद जब वो ऐसा है कि आयुर्वेद वाले या हमारे कॉलेज में काम करते हैं, इनको एक बार दिखा लेते हैं, क्योंकि हम आयुर्वेद वालों को कोई मानता नहीं है ना। तो हमारे पास आई तो मैंने देखा तो सिर्फ ऐसे उसको स्तंभ था, गौरव था, तो ये कफ के लक्षण दिख रहे थे, तो आम के लक्षण थे। तो मैंने उसको सिर्फ और सिर्फ वालु का स्वेद बताया, तो सिर्फ आप वालु का स्वेद करना है। तो स्टार्टिंग शी डिड नॉट लाइक, शी वाज लाइक व्हाट वालु का स्वेद, तो मैंने तो 5,000 रुपए खर्चे, उससे नहीं हुआ। तो मैंने बोला करेंगे, करके तो देखिए, 2 दिन कीजिए बस, कम नहीं होता तो फिर आप आगे चले जाना। तो उसके बाद मैंने कुछ ऐसे द्रव्य दिया जो शिरशोलादि वज्र रस और रासनादि कषाय और अष्टवर्ग कषाय, ऐसे कुछ मेडिसिन या नवक गुगुड़ मैंने प्रिस्क्राइब किया था। तो उसके साथ सिर्फ 2 दिन में शी वाज लाइक 50% उसको कम हो गया। उसके बाद हमने सिर्फ रूक्ष नाड़ी स्वेद भी बताया विदाउट एप्लीकेशन ऑफ ऑयल। सो शी वाज लाइक एब्सोल्युटली वेल आफ्टर 8 days। इसके बाद हमें सिर्फ वातोत्तर कंडीशन में लाए थे, तो उसको लिए और भ्रमण भी करना होता है अगेन, अदरवाइज अगेन द वात प्रकोप विल टेक प्लेस। तो उसके लिए उसको हमने अभ्यंग और नस्य के लिए पोस्ट किया। तो वो एक 8 दिन तक अभ्यंग और नस्य कंटिन्यूअसली चला। तो उसके बाद उसको हमने ब्रह्मण योगों को दिया था। तो शी वाज लाइक आफ्टर दैट 6 months और मोर शी इज एब्सोल्युटली वेल, शी डिड नॉट गेट द अटैक ऑफ मन्यास्तंभ। नहीं तो पहले बहुत सारे अटैक्स उसको आते रहते थे। तो after that similar case I was like when I was a PG scholar in Hubli Ayurved Mahavidyalaya. So our guide Dr. Prashant Iyer sir used to come to see the patients. तो उनके साथ जब मैंने राउंड्स के लिए गया था तो एक ऐसे किस्सा था
एक पेशेंट था, उसका मन्यास्तंभ हो गया था, तो उसको सर ने शीर्षुलादिवज्रस लिखा था। तो आई वाज लाइक फैसिनेटेड है, शीर्षुलादिवज्रस सर, उसको तो शीर्षुल नहीं है, तो शीर्षुलादिवज्रस क्यों लिखे आपने, उसको तो सिर दर्द है ही नहीं कहीं पर भी। तो आई वाज लाइक उनको बताया, तो सर बोले कि आप पढ़ के आओ उसके बारे में। तो मैंने देखा तो उसमें कहीं पर भी एक भी इंडिकेशन नहीं था कि मन्यास्तंभ का, लेकिन उसमें द्रव्य जब ऐसे थे तो सभी देखा, तो मैंने उष्ण, तीक्ष्ण और कफहर थे। तो सर को जाके बताया मैंने कि सर ऐसे एक भी इंडिकेशन नहीं है, लेकिन जो योग है वो वात कफर है। तो सर ने बाद में हमें समझाया कि दिस इज द कंडीशन वेयर देर इज आवरण ऑफ कफ ओवर वात। सो कफावृत वात कंडीशन है, तो कफहर चिकित्सा करना है, आप चाहे शीर्षोलादिवज्र से कीजिए या श्वासकुटार रस से कीजिए, लेकिन वो द्रव्यों का इस्तेमाल हमें करना आना चाहिए सिर्फ। तो दिस इज हाउ, विथआउट एनी, मतलब एक द्रव्य शाश्वत नहीं है, उसके पीछे का जो तत्व है ना वो शाश्वत होता है। अगर वो कफहर और उष्णवीर्य द्रव्य था तो उस सर ने इस्तेमाल किया था। तो इस तरीके से बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन हम कर सकते हैं। एक तो मैंने लिवर डिसऑर्डर्स में भी मैंने बहुत पहले यूट्यूब के लेक्चर्स में बताया था कि रज प्रवर्धिनी व्हाट वाज गिवन टू मेल पेशेंट इन obstructed bile कंडीशंस। तो वहां पर कासिस उसमें मेन इंग्रेडिएंट है, तो कासिस उष्णवीर्य, तो वहां पर जो भी स्रोतोरोध था उसको दूर करने के लिए वो वैद्य ने रज प्रवर्धिनी वटी पेशेंट, मेल पेशेंट को दिया था। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो द्रव्य इसी जगह पर इस्तेमाल होना है, तो आपके वैद्य की युक्ति से आप कहीं पर भी उस द्रव्यों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक मैं इम्पोर्टेंट एक दो केस और बताना चाहता हूँ, उसके बाद हम स्टॉप करेंगे। एक है वातकंटक। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं जो एंकल स्प्रेन और प्लांटर फेशियाइटिस या कैल्केनियल्स पर, ऐसे पेशेंट बहुत सारे हमारे पास आते हैं, जो वहां पर उनको हील में बहुत सारा पेन होता है, बहुत दर्द होता है, दे कैनॉट लाइक दे कैनॉट वॉक प्रॉपरली। तो कोई भी हार्ड चप्पल पहनते तो वहां पर दर्द होने लगता है। तो ऐसे कंडीशन में हमें सिंपल सा मैं प्रोसीजर आपको बताता हूँ। वात और वात कफहर चिकित्सा वहां पर करना होता है। तो आप अगर उसमें बहुत सारा वेदना है और स्तंभ है और बहुत सारा गौरव है, तो आप रुक्ष चिकित्सा पहले कीजिए उसको। और स्तंभ गौरव नहीं है, हैवीनेस नहीं है, सिर्फ दर्द है, तो आप वहां पर 80 नंबर निडल लेके सिर्फ आप रक्तमोक्षण कीजिए उस जगह का। अगर आप रक्तमोक्षण करेंगे तो तुरंत जब ब्लड आएगा ना, आई कैन बेट यू द पेशेंट स्टार्ट वॉक, आराम से वो पेशेंट चल सकता है, तुरंत पेन कम हो जाता है। वो कोई ऑर्थोपेडिशियन भी नहीं कर सकता, कोई भी बड़ा एलोपैथी के डॉक्टर नहीं कर सकता है जितना आयुर्वेद का वैद्य सिंपल 1-2 रुपए के नीडल से कर सकता है। तो आप रक्तमोक्षण करने के लिए हिचकिचाए नहीं, रक्तमोक्षण आराम से कर सकते हैं। उसके बाद आप थोड़ा सा जो बोन्स वगैरह ग्रोथ है उसके लिए थोड़ा कर्षण चिकित्सा भी करना होता है। आप सिमनाथ गुगुलू, आरोग्यवर्धिनी, चंद्र प्रभावटी, अजमोदादि चूर्ण या वैश्वानर चूर्ण, ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन आप दे सकते हैं। उसके बाद एक 15 दिन के बाद आप ब्राह्मण, अस्थि ब्राह्मण चिकित्सा भी आप कर सकते हैं उस केस में। तो एक पुलिस ऑफिसर था ऐसे ही जो पीएसआई था, तो उसके भी चिकित्सा हमने इस तरह से किया था। तो ही वॉज लाइक 3-4 महीने से वो फिर रहा था इधर उधर, बहुत सारे एलोपैथिक डॉक्टर्स, ऑर्थोपेडिशियन के पास, तो सभी लोग उसको ऑपरेशन करना है, उस बोन बड़ा है उसको काटना है, ऐसे ही बोले थे। तो सिर्फ उसकी एक 150-200 रुपए में चिकित्सा खत्म हो गया। सो ही इज लाइक, वो अभी तक उसको दर्द वापस से नहीं आया है। और एक कंडीशन है जो कॉमनली, मतलब ये कंडीशन कॉमनली हमारे पास आता रहता है लेकिन हम ध्यान नहीं देते, लेकिन ये कंडीशन है टेनिस एल्बो का। जस्ट तो टेनिस एल्बो एक ऐसी केस है, ये अभी ये नाम फेमस सचिन तेंदुलकर के बाद हुआ था, जब सचिन को टेनिस एल्बो हुआ था। तो टेनिस एल्बो जहाँ पर इन्फ्लेमेशन ऑफ टेंडन्स होता है, जहाँ पर एल्बो जॉइंट्स में टेंडन्स इंसर्ट होते रहते हैं, उस जगह में टेंडन्स का इन्फ्लेमेशन रहता है, तो देयर विल बी सिवियर जॉइंट पेन एंड देयर विल बी द पेशेंट विल नॉट बी लाइक एबल टू परफॉर्म नॉर्मल वर्क्स विथ हिज हैंड। तो वो टेनिस एल्बो केस आप स्नायुगत वाद से कंपेयर कर सकते हैं। वहां पर आचार्य बताया है कि बाह्याभ्यंतर आयामम खल्लिम कुब्जत्मम एव च सर्वांग एकांग रोगश्च कुर्यात् स्नायुगत अनिले। सर्वांग में भी हो सकता है, एकांग में भी हो सकता है स्नायु के कंडीशन में। तो यहाँ पर एक अंग में, मतलब एल्बो जॉइंट में हुआ है। तो इस जगह पर टेनिस एल्बो के बहुत पेन होता है, पेशेंट लाइक आप ऐसे दबाए तो यहाँ पर बहुत सारा पेन रहता है, तो लाइक अनेबल टू टेंडरनेस रहता है, सिवियर, द पेशेंट कैन नॉट टॉलरेट योर टच ऑल्सो।
तो उस कंडीशन में आप डायरेक्टली यू कैन गो फॉर द सिरावेद। आप यहाँ पर एल्बो जॉइंट में आप सिरावेद कीजिए, तो सिरावेद करने के बाद आप उपनाह स्वेद कर सकते हैं। उपनाह स्वेद अगेन यू कैन परफॉर्म, उपनाह स्वेद के बारे में मैं आगे बताऊंगा। तो साम निराम देख के आप कर सकते हैं। तो उसके बाद स्नेहन करिए और ब्राह्मण चिकित्सा से यहाँ पर बहुत सारा दर्द कम हो सकता है। तो उसके बाद मायोपैथीज है, बहुत सारे मायोपैथीज में मैं मायोपैथीज के बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा, बहुत सारे बहुत वाइड टॉपिक है एंड द टाइम इज अबाउट टू एंड। तो यहाँ पर सिंपल जो रहते हैं स्टैटिन इंड्यूस्ड मायोपैथीज रहते हैं, जो बहुत सारे स्टैटिन जब देते हैं पेशेंट्स को तो मायोपैथीज रहता है। तो मायोपैथी में बहुत सारा ऐसे दर्द होता है जो दैट इज नो रिलेटेड विद द एक्सरसाइज, कोई एक्सरसाइज से रिलेटेड नहीं रहता है, कभी भी किसी जगह पर दर्द होने लगता है। ज्यादातर ये हिप मसल्स में और काफ मसल्स में और ऐसे जनरलाइज्ड पेन रहता है। तो यहाँ पर आप सामवात की चिकित्सा कर सकते हैं, आम ड्यू टू स्टैटिन मेडिसिन वगैरह इस तरीके से। कटु तिक्त रस के औषधियों का उपयोग, आम पाचन आप कर सकते हैं, कैशर गुगुलु अमृतारिष्ट एकांग वीरस चंद्र प्रभावटी अश्वगंधारिष्ट, ये सब ऐसे द्रव्यों के इस्तेमाल से आप आराम से इनकी चिकित्सा कर सकते हैं। जो धातु क्षय के लक्षण, धातु क्षय की अवस्था में जाएगा तो मायोसाइटिस हो जाएगा, तो उस अवस्था तक जाने नहीं देना है। तो कमिंग टू वन मोर इंपॉर्टेंट कंडीशन दैट इज अवैस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ फीमर हेड। तो फीमर हेड में एवीएन ऑफ फीमर हेड कहते हैं। तो फीमर हेड देयर विल बी अवैस्कुलर नेक्रोसिस, बिकॉज ऑफ दैट द पेशेंट स्टार्ट सिवियर पेन इन द हिप रीजन। तो उसके बाद द लाइक द लेग्स विल बी, वो लेग छोटा हो जाता है और उसमें दर्द होने लगता है, द लेग विल स्टार्ट टू श्रिंक एंड ऑल दोस थिंग्स। तो उसको आप वात रक्त से कंपेयर कर सकते हैं। यू कैन कंपेयर इट विद रक्त मार्गम निहंत्याशु शाखा संदेशु मारुत निविश्यम अन्योन्यम आवर्यम वेदना हरे रसम। तो ऐसे रक्त मार्ग का वहां पर आवरण है। तो नेक्रोसिस ऑफ द फीमर हेड, तो वहां पर अवैस्कुलर द वैस्कुलर द वेजल्स आर अफेक्टेड एंड द ब्लड सप्लाई टू द हेड ऑफ द फीमर इज नॉट प्रॉपर। तो इस तरीके से आप उस कंडीशन को डायग्नोस करके आप वात रक्त के जो भी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, वात रक्त में रक्तमोक्षण है, वात रक्त में बस्ती है, परिषेक है, अभ्यंग है, तो तिक्त क्षीर बस्ती है। इस तरीके से आप हम डिटेयली उसके बारे में एक क्लास ही अलग से चाहिए, अवैस्कुलर नेक्रोसिस विल स्पीक ऑन द टाइम परमिट्स। तो वहां पर मधु अष्टादि तैल का भी बहुत सारा इंपॉर्टेंस देखने को मिलता है। तो जनरली अगर हम देखेंगे तो ये सारे अस्थि व्याधि जो है, तो यहाँ पर चरक सूत्रस्थान 28 चैप्टर में आचार्य चरक कहते हैं तो अस्थि वह स्रोतस की दृष्टि की चिकित्सा कैसे करना है। तो अस्त्याश्रयाणाम व्याधीनाम पंचकर्माणि भेषजम पंच बस्त्या क्षीर सर्पिश्च तिक्तकोपहितानि च। तो अस्त्याश्रय व्याधियों की चिकित्सा के लिए पंचकर्म ही भेषज है। बस्ती क्षीर सर्पियों का प्रयोग, तिक्त द्रव्यों का प्रयोग, तिक्त क्षीर बस्ती का प्रयोग हमेशा करना चाहिए। तो अब हम कॉमन प्रोटोकॉल्स, कॉमन ट्रीटमेंट मॉडलिटीज जैसे बस्ती है, धारा है, कषाय है, तैल है, उनके बारे में एक 10 मिनट में बात करेंगे। तो धारा कैसे हम सेलेक्ट करें कि कौन से धारा कहाँ पर करना है। धारा आप जानते हैं ना, परिषेक होता है, जो तैलों का द्रव्यों का परिषेक होता है। तो दशमूल क्षीर धारा एक धारा है इंपॉर्टेंट, जो मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स में कोई भी वाद्य आप कहीं पर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आचार्य चरक इन स्वेदन अध्याय कहते हैं दशमूल श्रुतम क्षीरम क्षीरम शीतम सद्योशूल निवारणम। अगर आप इंस्टेंट पेन रिलीफ चाहिए तो पेशेंट को आप दशमूल श्रुत क्षीर का धारा कर सकते हैं। दशमूल वात लिया, क्षीर में उसको उबाला और पानी डाल के उबाला, तो उस द्रव्य का आप सर्व शरीर पे धारा करेंगे तो पेशेंट का पेन इमिडिएटली कम होता है। तो आप धान्याम्ल धारा भी कर सकते हैं, जो पित्त कफ की अवस्था में धान्याम्ल धारा बताया गया है। और तक्र धारा भी है, जो कफ की अवस्था में ज्यादातर इस्तेमाल होता है। और महास्नेह की धारा है, तो वो वात के हिसाब से, वात के कंडीशन में यूज होता है। आप तैल धारा भी कर सकते हैं, घृत धारा कर सकते हैं, मांसरस की धारा भी कर सकते हैं, जो सभी मिला के हो गया महास्नेह, तो उसकी भी धारा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लंघन और स्वेदन के बारे में अभी तक मैंने बहुत बार बोला है, लेकिन एक दो सेंटेंस में अगर बोलना है तो लंघना इन कोष्टा इज उपवास। ओके, अग्री विथ मी। लंघना इन कोष्ट, अगर आप कोष्ट में लंघन करना चाहेंगे तो उपवास करेंगे। लंघना इन जॉइंट इज ऑलवेज लेपना, अगर आप जॉइंट में लंघन करना चाहेंगे तो आप लेप लगाइए। लंघन इन कोष्ट इज उपवास अगेन। लंघन इन नेत्र रोग इज अगेन विडालकादि, सो रूक्ष कल्पनास यू कैन डू परमिटेशन कॉम्बिनेशन लाइक दैट। तो स्वेदन में भी मैंने बताया है, स्वेदन के बारे में बहुत सारे रूक्ष स्वेद हुआ, वालुका स्वेद हुआ,
पत्रपोटली स्वेदवा, कफ और वात के कंडीशन है तो पत्रपोटली स्वेद इज वेरी गुड। तो यू कैन डू पत्रपोटली स्वेद बनाने के लिए 2-3 जैसे पत्र चाहिए, एरंड पत्र, निर्गुंडी पत्र, धतुरा पत्र, ऐसे पत्र लेके आप जो पत्रपोटली स्वेद बना के आप कर सकते हैं। तो रूक्ष स्वेद इज आल्सो यू कैन डू। और एक है उपनाह स्वेद। उपनाह स्वेद के बारे में मैंने बोला कि आगे बताऊंगा। तो उपनाह स्वेद सिंपल सा, जो गरीब पेशेंट है, जो इतने सारे पीड़ित चिल्ल तैयार वगैरह आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनको आप उपनाह स्वेद एडवाइस कर सकते हैं। तो उपनाह स्वेद के कंटेंट्स में सिंपल सा आप एक 2 चम्मच बला चूर्ण लीजिए, नहीं तो रासना चूर्ण लीजिए, और थोड़ा सा सेंधव लवण डालिए उसमें, और एक कोई भी एक वातहर तेल ले लीजिए, बला तेल, धनवंतरम तेल, नारायण तेल, कोई भी एक तेल ले लीजिए, और आम्ल रस का कोई भी एक द्रव्य ले लीजिए, चाहे कांजी ले लेना, नहीं तो आप नींबू रस ही ले लेना, या चिंचा रस ले लेना, कोई भी एक आम्ल द्रव्य ले लीजिए, और इनको सब मिला के थोड़ा सा गर्म करके जो अफेक्टेड पार्ट है, जो अफेक्टेड पेनफुल पार्ट है या ज्वाइंट है, उस पर आप लगा सकते हैं। और लगाने के बाद आप उस जगह का आप पत्र कपड़े से आप उसको बांध दीजिए। तो कपड़े से आप जब बांधेंगे तो बद्धो रात्रो दिवा मुंचेत, आप रात्रि में उसको बांधेंगे तो दिवस में उसको खोलेंगे, अगर दिन में बांधेंगे तो उसको रात में खोलेंगे। तो ओवरनाइट उसको रखना है। तो दिस इज हाउ द उपनाह स्वेदा वर्क्स देयर। और उसके बाद लेप कल्पना के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। लेप कल्पना, कौन सा लेप कहाँ पर डालना है वो इंपॉर्टेंट है। आप लेप में कोई भी, मैं जो लेप बता रहा हूँ अगर वो आपको अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके एरिया में जो अभी, अगर आप कोई नॉर्थ इंडिया से है, कोई यूपी से, वाराणसी से है, कोई महाराष्ट्र से, आपकी जगह में कोई भी तीक्ष्ण द्रव्य अगर मिलता है, चाहे चित्रक चूर्ण मिलता हो या सरसप चूर्ण मिलता हो, तो वो कफ कंडीशन में आपको लगाना है। तो यहाँ पर बेस्ट है लेप विथ लाइक कोई भी उष्ण द्रव्य, तो वहां पर आप उष्ण द्रव्य से अगर करेंगे तो वो कफहर लेप होगा। तो नागर आदि लेप है तो वहां पर आप वात डोमिनेंट कंडीशन में लगा सकते हैं। जटामय आदि लेप है, इट इज इन पित्त कंडीशन, एंड गृह धूम आदि लेप इन वात कफ कंडीशन। सो दीज आर द 3 लेपास, बहुत सारे कंपनीज के अवेलेबल भी है। आई विल रिपीट वंस अगेन, नागर आदि लेपा, जटामय आदि लेपा, एंड गृह ध्रुम आदि लेपा। गृह धूम इज अगेन गूगल, गृह धूम आदि लेपा। तो गृह धूम आदि लेपा इज वात कफ, Jatamaya Adilepa in Pitta, and Nagar Adilepa in Vata dominant conditions. You can apply Lepana. And coming to the Bastis, तो आप कोई भी ऐसे मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स में आप अगर बस्ती देना चाहते हैं तो बस्ती में भी इफ देर इज कफ एंड आवरण लाइक कंडीशन, यू कैन गो फॉर द वैतरण बस्ती और द क्षार बस्ती। उसमें मधु सैंधव स्नेह के साथ साथ गोमूत्र और गुड़ और चिंचा रस भी होगा। तो इसको आप क्षार बस्ती या वैतरण बस्ती कहेंगे। तो आप अनुवासन बृहद सैंधवादी तैल वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके बाद अगर आप निराम अवस्था है तो आप एरेंडामूल आदि या सिंपल मधु तैलिक बस्ती वगैरह आप जा सकते हैं। तो दशमूल निरो बस्ती भी आप कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ बस्तीज अगेन योगा काला कर्म बस्ती डिपेंड्स ऑन द डिसीज एंड द सिवियरिटी ऑफ द डिसऑर्डर्स। तो जनरली एक आप 15 दिन तो इट इज better to do the basti in these kind of conditions. So after that, coming to the shaman aushadhis, in 10 minutes or 5 minutes, the coming 5 minutes, we'll just discuss about the some of the shaman aushadhis, basic understanding for a Ayurveda or the beginner of Ayurveda Vaidya should know. Some important kashayas मैं बताऊंगा। जैसे कषाय के कोई भी कषाय सिलेक्शन, I particularly taken this topic because all of you are, most of them are नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट्स। तो कषाय के बाद आप इस्तेमाल कम करते हैं, और ज्यादातर ऐसे प्लेसेस है जहाँ पर कोई भी कषाय इस्तेमाल नहीं करते हैं, सिर्फ रसौषधि, क्वाथ, चूर्ण, गुटी वटिका से काम चलता है। लेकिन दिस कषायस आर वंडरफुल, यू कैन सेलेक्ट देम एंड ट्रीट एंड विद सक्सेसफुली विद कॉन्फिडेंस यू कैन राइट दिस कषायस। ओके, तो कषाय के बारे में मैं बोलूंगा। तो कोई भी कषाय के सिलेक्शन हो तो उसके बाद आपको देखना है दोष क्या है, दोष प्रत्यनिक, व्याधि प्रत्यनिक, उभय प्रत्यनिक, स्थान विशेषत्व, मुख्य द्रव्य विशेषत्व, प्रकरण विशेषत्व, इतना आपको जानना है। सिंपल, आप ही खुद ही आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन उनको कर सकते हैं। कौन से दोष पर ये कषाय एक्ट करेगा, कौन से व्याधि में करेगा, और कौन से स्थान में ये करेगा, और उसमें मुख्य द्रव्य क्या है, और इसका प्रकरण क्या है, इतना आप जानना चाहिए। तो अभी फॉर एग्जांपल मैं रासना सप्तक कषाय का एग्जांपल दे रहा हूँ। तो रासना सप्तक का कषाय तिक्त कठोर रसायन नेचर। ओके, तो ये ऑब्वियसली वात कफहर होगा, उष्ण वीर्य है, ठीक है, कटी त्रिक विशेषत्व है इसका, कटी और त्रिक एरिया में इसका
ज्यादातर यूज होता है, और शुंठी प्रक्षेपक डाल के हम पिलाते हैं। तो दिस इज अबाउट द रासना सप्तक कषाय। तो सिमिलरली अष्टवर्ग कषाय है, भद्रदार्वदी कषाय है। सो दिस इज दे आर टोल्ड एज जस्ट वातहर। तो अनिलापह, तो कौन सा अनिलापह है, इसके लिए कोई स्थान नहीं है, ये सर्व शरीर में एक्ट करेंगे। सो अष्टवर्ग कषाय एंड भद्रदार्वदी कषाय, दीज आर कफहर, आमहर एंड आवरणहर। तो सर्वद्र देह विशेषत्वम, you can say like that. So इसमें मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ अष्टवर्ग आर लाइक बला, सहचरा, एरंडा, शुंठी, रासना, सुरद्रव, सिंधुवारा, लशुना एक्सेट्रा। सो उष्ण द्रव्य है, वात कफहर है एक्सेट्रा। उसके बाद आप बहुत सारे ऐसे कषाय है जैसे सहचरादि कषाय, तो पवन पीड़ित देह गतिम, मतलब जो पवन पीड़ित देह गति उसको ठीक करेगा। और रासना एरंड आदि कषाय है जो शोथ प्रधान संप्राप्तियों में इस्तेमाल होता है। तो रासना पंचक कषाय है, शुंठी आदि कषाय है, रासना शुंठी आदि कषाय है, तो ये सर्वाइकल कंडीशंस में बहुत अच्छे से काम करेगा। कार्पास आदि कषाय है, प्रसरण्य आदि कषाय, बेस्ट इन सर्वाइकल रेडिकुलोपैथीज एंड जो सर्वाइकलर स्पॉन्डिलोसिस वगैरह कंडीशन में आप बहुत आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दशमूलक कषाय है, एरंडाधिक्वात है, रसोनाधिक्वात है। तो ऐसे कषायों की सिलेक्शन हमें करना होता है। इसके बाद अगर हम तैल की सिलेक्शन करें तो बहुत सारे वैद्य यहाँ पर फेल होते हैं। तो तैल, कौन से तेल हमें किस में इस्तेमाल करना, कोई भी तेल आया, हाँ कौन सा है वो लिख देंगे, ऐसा नहीं है। कोई भी दर्द है महानारायण तेल लिख दो, कोई भी दर्द है बला तेल लिख दो, ऐसा नहीं होता है। आप दोषों को देखिए और धातुओं को देखिए, कौन सा अवस्था है, कौन सा दोष यहाँ पर इन्वॉल्व है, तो उस हिसाब से आप उस तैल का सिलेक्शन करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द इट इज वाता, प्योर वातज कंडीशन, so you can select dhanvantram taila, ketaki muladi taila, narayana taila, like that you can select the tailas. If it is pitta associated condition, you can go for pinda taila, aranaladi taila, manjishta taila, chandanadi taila. So all these things are pittahara tailas. So अगर आपको कफहर करना है वहां पर, तो कफ डोमिनेट कंडीशन लग रहा है, तो यू कैन गो फॉर क्षीरबला, कार्पासस्त्यादि तैला, कोट्टम चुक्कादि तैला। सो ऑल दीज विषगर्भ तैला, तो उष्ण तैलों का इस्तेमाल करना है। तो लॉजिकली स्पीकिंग, अगर आप तैलों को लॉजिकली अगर आप देखते हैं तो उसमें दो कैटेगरी और भी कर सकते हैं, जैसे उष्ण तैल है और उष्ण ब्रह्मण तैल है। उष्ण तैलाज आर इन एक्यूट कंडीशन, दे आर गुड। एक्यूट कंडीशन में उष्ण तैलों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं इन एक्यूट केसेस ऑफ डिस्क प्रोलैप्स, एक्यूट केसेस ऑफ स्पॉन्डिलोसिस एक्सेट्रा। तो कोट्टम चुक्कादि तैल है, विषमुष्टि तैल है, विषगर्भ तैल है, चिंचादि तैल है। सो ऑल दीज आर उष्ण तैलास, यू कैन सेलेक्ट देम। एंड उष्ण ब्रह्मण इज वन मोर कैटेगरी, यू कैन गो फॉर in degenerative conditions, old age है, chronic cases है, diffuse atrophy है। So all these conditions you can go for the उष्ण ब्रह्मण तैला, for example कार्पासस्त्यादि तैला, प्रभंजन तैला, माश तैला, प्रसरण्यादि तैला, पंचस्नेहा, महास्नेहा, all these things are excessive in old age and chronic cases. उष्ण ब्रह्मण तैला are used. Similarly in Google selection also, if there is Niramavastha, go for Trayodashanga Guru. If there is Dhatukshaya, go for Trayodashanga. If there is Sama and there is only and also Vata Kapahara is needed, go for Yoga Rajaguru. When there is Rakta also Dushti is there. Okay, in Vata Rakta Samprapti, go for Kaishora Guru. So Ama is more, go for Simhanada Guru. So all these things. So this is how the permutation and combination of the medications you are going to do. So this is about the medications. So finally I want to conclude with one you can say it's my request, or it's like a notion, that is Vyadhi Namakarana is not important. You should not name, or if you are unable to name a disease also, no problem. Just go for the dosha involved in that and the avastha. Is it Sama avastha or Nirama avastha, and which dosha is involved, your half work is done there. Okay, in Charaka Sutrasthana 18th chapter, Charaka says that Vikara nama kushalo na jigriyat kadachana nahi sarva vikaranam namatva asti kaschid ध्रुवा स्थिति। मतलब जो विकारों की, मतलब व्याधियों के नामकरण में आप अगर फेल होते हैं, अगर व्याधि के नामकरण करने नहीं आ रहा है आपको, अगर इसको गृध्रसी नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन वात कफ दुष्टि की वजह से जो बाहु का कर्मक्षय या शक्ति का कर्मक्षय हुआ है, अगर आपको इतना भी समझ में आया ना, तो इट इज मोर देन एनफ फॉर Ayurveda practitioner or the beginner of Ayurveda. Whatever I have preached now, whatever I have explained till now, it is not for the Ayurveda Vaidya who is already practicing and who is senior to me. I am a very small practitioner. I am just in front of you to guide to the my juniors and who are the
beginner so that I could motivate them a little bit. So ठीक है, मेरे से मैं बहुत छोटा हूँ, मेरे से बहुत सारे वैद्य एक्सपीरियंस्ड भी बहुत सारे भारत में उपलब्ध हैं, तो एक ऐसा मेरा एक जेन्युइन रिक्वेस्ट था। तो सभी दोष है जो दोषों की प्रकोप की वजह से होता है, समुत्थान विशेष में एक व्याधि उपस्थित होते हैं, स्थान विशेष में होते हैं, तो इनके नामकरण में कोई रुचि आपको नहीं रहना चाहिए, कोई भी नाम हो, लेकिन उस व्याधि की अवस्था क्या है, उस व्याधि में दोष कौन सा इन्वॉल्व है, वो हेतु क्या है, तो वो पर्टिकुलर रोगी कौन से हेतुओं का सेवन कर रहा है, तो विधि विपरीत कौन से है उसमें, तो उसको विधि के अनुसार उसको अगर आप गाइड करेंगे, उसके बाद आप चिकित्सा शुरू करेंगे, तो हेतुओं को बंद करेंगे, उसके बाद थोड़ी सी भी चिकित्सा से आदमी ठीक हो सकता है। तो इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरिओम। और कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। Thank you, sir, for this wonderful session. We will go ahead and take some time for questions now. या श्योर। Yeah, sir, डॉक्टर मृणाल जी का क्वेश्चन है, आघातजन्य सूल को सूल में क्या सोचना चाहिए? तो आघातजन्य इट इज अबाउट मीन्स टू से अभिघात। तो अभिघातजन्य जो होता है, तो अभिघात से पहले वहां पर अभिघात की चिकित्सा, मतलब जो भी वुंड है, इफ इट इज ओपन वुंड यू कैन गो फॉर द व्रण चिकित्सा, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपको व्रण की चिकित्सा पहले करना है। तो व्रण चिकित्सा के लिए सुश्रुत ने बहुत सारे विधि बताया है। तो अगर अभिघात की वजह से हो रहा है तो उसमें पहले दोष प्रकोपित नहीं होंगे, उसके बाद दोषों की इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। तो उस कंडीशन में तो पेन मैनेजमेंट के लिए हमें बहुत सारे ग्लूज अवेलेबल है और बहुत सारे लेप है, तो ऐसे चिकित्सा हमें करना चाहिए। और ब्लीडिंग को रोकना है पहला, तो ट्रोमा मैनेजमेंट विल बी लाइक इट विल बी देयर। तो उसके बाद के शूल मैनेजमेंट के लिए आपको कषायास, तैलास और वटी गुटिका का सिलेक्शन करना है, लेकिन वो जो दोष वहां पर है उसके हिसाब से करना है। अगर आप वहां पर कलेक्शन हो गया, बहुत सारा स्वेलिंग है, तो उसमें सरगुणा और जलीय गुणा ऑफ पित्त इज इंक्रीज देयर, so in that you can go for the Gokshuradi Gugulu. If there is severe pain, so you can go for Trifla, I mean to say Yogaraj Gugulu. तो उसमें स्वेलिंग वगैरह कम नहीं हो रहा है तो त्रिफला, गोक्षुरादि गुगुड़ू। तो इस तरीके से हमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन करके चिकित्सा करना है और लेप चिकित्सा करना है, बंधन करने हैं, तो वो सुश्रुत के हिसाब से वो मैनेजमेंट जाएगा। Okay, sir. Sir, our next question is Dr. Sonali. Is there any relationship between gallstone and backache? इन सम केसेस इट विल बी देयर। तो इसको हम रेफर्ड पेन कहते हैं। तो जो वेगस नर्व रहता है उसके वजह से जो रेफर्ड पेन होता रहता है बैक एक में, तो गाल स्टोन्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स यस देयर विल बी, एंड इवन इन द यू कैन से इन the stones of the renal origin, like in renal stones or the renal calculi is what we say. So in those condition also the patients having backache, so you can treat accordingly. Gallstones अगर ज्यादा बड़े नहीं हैं, तो if they I have seen more than 10 mm, 15 mm, 20 mm also reduces with the ksharas and tikshna, ushna and द्रव्यास, जैसे कि ताम्र भस्म है, पित्तहर योग है, जैसे प्रवाल भस्म है, मुक्ता भस्म है। तो ऐसे द्रव्यों से, पित्तहर द्रव्यों से वो गाल स्टोन्स भी कम होते हैं। तो गाल स्टोन्स, यस ऑफ कोर्स देयर इज अ रिलेशन। Okay, sir. It looks like we have covered all of our questions. So I want to say thank you to sir for this wonderful session. It will help us a lot and also guide the thousands of students or practitioners who are linked with Pro Ayurveda. Thank you, everyone. We appreciate you being here. Thanks again for joining us today, and we will see you next time. Thanks a lot. Thank you, Pro Ayurveda, for such a wonderful opportunity. Thank you.